السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کی بزم خدمت میں ہم 15th پوڈ کاسٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل پوڈ کاسٹ رہے گا، اور یہ 15 پوڈ کاسٹ میں آپ کو پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 ایسے کئی سیریز پیش کیے جائیں گے، جن انشاءاللہ اس کے اندر بتایا جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، کمالات مصطفیٰ کے متعلق، اور بے شمار چیزیں انشاءاللہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے ذریعے ایسا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آپ کی بزم خدمت میں 15th اسپیشل پوڈ کاسٹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، اور آج ہم مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں پہلا سوال مفتی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب بتائیے کہ آج تک ہم نے سنا ہے استقبال رمضان، اور آج جو عنوان ہمارا ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے ہم کو، استقبال ماہ ربیع الاول شریف، اس کے متعلق آپ ہمیں وضاحت فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسمه أحمد، صدق الله العظيم۔ محمد باعث کون و مکان تشریف لے آئے، وہ نور حق خدا کے رازداں تشریف لے آئے۔ تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہیں، سنا درد و علم رحمت نشاں تشریف لے آئے۔ آج ہم اپنے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں اور اپنے سینٹر کی جانب سے ایک پروگرام میں اپنے ہوسٹ شیخ نوید کے ساتھ چند میلاد النبی سے ریلیٹڈ سوالات کے حوالے سے امت کے سامنے رشد و ہدایت کا شاہپارہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا سوال، اور یہ واضح رہے کہ یہ سوال در حقیقت امت کا سوال ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارے نئی جنریشن، نوجوان نسلیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں گلف کی وجہ سے، گلف کنٹری میں جانے کی وجہ سے، وہاں کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر جب اپنے وطن مالوف غریب نواز کے در میں اور وطن میں آتے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہن میں جنم لینے لگتے ہیں، خود بھی کنفیوز لائف گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی گزارنے پر پریشرائز کرتے ہیں۔ میں انہی تمام کے تناظر میں ان کے چند سوالات کے جوابات، جو در حقیقت آپ سب کے لیے ہے اور امت کے لیے ہے۔ یہ صحیح سوال ہے کہ اب تک استقبال رمضان کا جملہ سننے کو ملتا تھا، اور اس پر بھی ظاہر ہے کہ آج تک تو میں نے اعتراض تو نہیں سنا، لیکن استقبال رمضان سننے کو ملتا تھا، یہ استقبال ربیع الاول کہاں سے؟ سوال کا مقصد ہے کہ یہ سنیوں کی ایجاد تو نہیں، اہل سنت و جماعت کی ایکٹیویٹی تو نہیں، یہ ان کا پرسنل معاملہ تو نہیں؟ تو آسان جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ توحید کا کانسیپٹ ہے۔
یہ اہل سنت و جماعت کی اب اگر کہیں تو اہل سنت و جماعت کی کا بھی عنوان ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت توحید کے خلاف تو نہیں ہے۔ جب توحید کا کانسیپٹ ہے تو وہ کس طرح، ایک لفظ میں کہوں کہ اگر استقبال رمضان جائز ہے تو استقبال رمضان کے ساتھ ساتھ استقبال ربیع الاول جائز ہی نہیں، باعث ثواب بھی ہے۔ اور ریئل جواب دوں، کیونکہ رمضان اسی ربیع الاول کے صدقے میں ملا ہے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے سبب اور ایک لفظ آتا ہے مسبب۔ سبب مین ہوتا ہے، ابھی چائے پیا آپ نے، چائے کا سبب کیا تھا؟ شکر، پتی، پانی، دودھ۔ اگر وہ چاروں نہ ہوتے تو چائے کا وجود ہوتا نہیں۔ سبب جو ہوتا ہے یہ کسی کو وجود دینے کے لیے وجہ بنتی ہے، اور اس کے بغیر اس کا وجود، مسبب کا وجود، دوسری شے کا وجود نہیں ہوتا، دوسری چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت، دیگر اشیاء کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ملے تو انسان کی حیات باقی نہیں۔ ایک سبب ہے یہ جینے کا، ٹھیک ہے۔ ایک فار ایگزامپل، آپ یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو، یہ نہیں، آپ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، تو آسان سا سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آئے ہیں وہ مہینہ ربیع الاول ہے، اور جو حضور آئے ہیں وہ کائنات کے سبب ہیں، کائنات کے سبب۔ اسی لیے میں نے اپنا شعر پڑھا، محمد باعث کون و مکان، یعنی کون و مکان، جو چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب کائنات جب کہہ دیے، یونیورسل ایک دم، آل ورلڈ، اوپر نیچے سب کے وہ سبب ہیں، باعث ہیں۔ باعث مانے سبب، سمجھ رہے آپ؟ جب حضور سبب ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے بھی سبب ہیں، رمضان کے بھی سبب ہیں، روزے کے بھی سبب ہیں، حج کے بھی سبب ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو ہمیں روزہ نہیں ملتا، رمضان نہیں ملتا، بلکہ خود رحمان نہیں ملتا، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے حدیث کی تناظر میں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الارضین، لولا کا لما خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہیں کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو یہ سبب ہے کہ رمضان اگر جائز ہے استقبال رمضان، تو ربیع الاول کے استقبال کو جائز ہی نہ سمجھو، بلکہ باعث برکت کثیرہ سمجھو۔ سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر؟ الحمدللہ۔ یعنی یہ بدعت ہماری نہیں ہے۔ ارے اب ایک دم پریکٹیکلی طور پر میں نے شریعت سے جواب دے دیا ہے کہ استقبال رمضان جائز سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے سوال کا مقصد ہی یہ ہے کہ استقبال رمضان اب تک تو سنتے تھے، مطلب یہ جائز ہے، جائز سنتے تھے، اور میں نے کہا کہ اگر استقبال رمضان جائز ہے تو ربیع الاول استقبال رمضان کا سبب ہے، اور سبب مقدم ہوتا ہے، سبب اصل ہوتا ہے، یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو۔ لہذا اگر وہ جائز ہے تو اسے بدرجہ اولا، جس کو بدرجہ اولا جائز سمجھا جائے۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا جس طرح مفتی صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بتا دیا ہے کہ استقبال رمضان جب ہم مناتے ہیں تو استقبال ربیع الاول اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا رکھتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تو ہمیں رحمان ملتا، نہ کلام ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ نماز ملتی۔ یہ سارے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے صدقہ طفیل میں ہیں۔ الحمدللہ۔ دوسرا سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے آپ سے کہ سوشل میڈیا پہ ایک سوال گردش ہو رہا ہے اور چل رہا ہے کہ اب اس سال ربیع الاول شریف مبارک میں 1500 سال گزر چکے ہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں، اور یہ ربیع الاول 1500 سال والا ربیع الاول ہے، اور اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ آپ ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے۔ میں نے اس سلسلے میں جمعہ میں بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے، محبت جو ہوتی ہے نا، یہ دل سے ہوا کرتی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے وہ روح سے ہوا کرتا ہے۔ ہم نبی سے کے محبت بھی کرنے والے ہیں اور عاشق بھی ہیں، الحمدللہ۔ ہماری روح قربان، ہمارا دل قربان۔ اس لیے اگر فتوے لگانے ہو نا تو پھر روح پر لگاؤ یا دل پر لگاؤ۔
सुभान अल्लाह। बात मोहब्बत का है। हाय हाय। मोहब्बत वाले जो होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि महबूब कौन क्या कैसे, बस महबूब, हाय हाय, वाह वाह। महबूब की हर अदा। इसीलिए अरबी का एक मकूला है जो पढ़ने के जमाने में हमने पढ़ा, मकूला भी क्या, बुजुर्गों का ये मकूला है, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि जो मोहब्बत करने वाला होता है ना, अपने महबूब की हर तरह से इताअत करता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। ये 1500 साल का जो जुमला कहा जा रहा है, ये किसकी तरफ निस्बत है? उस महबूब की तरफ जो हमारे महबूब तो हैं ही, खालिक के भी महबूब है यार, और बल्कि खुदा की मोहब्बत के सबब है वो। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हबीब आप कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत बमाना दावे मोहब्बत करते हो, तो मेरे हबीब के पीछे चलो। तो अल्लाह की मोहब्बत का जो दावा करते हैं उसकी दलील है हुजूर की इत्तिबा। और इत्तिबा का मतलब मैं बताया हूं कि इत्तिबा कहते हैं बेचूचरा मानना, बेचूचरा मानना, डिस्कस नहीं करना। अब जिसकी इत्तिबा कर रहे हैं उसको बेचूचरा मानना, अकल को दखल नहीं देना, नहीं देना, किसी भी हाल में नहीं, बेचूचरा मानना। जैसे अबू बकर ने कहा था, अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो सच है। हाँ, मोहम्मद कह रहे हैं तो सच है। कहना यह है इत्तिबा का जो कॉन्सेप्ट है। तो 1500वां जो मिलादुन नबी इस साल का है, इस सिलसिले में ये मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत के जुमले हैं। और जिस किसी को भी नबी से मोहब्बत का दावा है वो याद रखें कि वो डिस्कस नहीं करें, बल्कि 1500 साल का इंतजाम करें और एहतमाम करें। समझ रहे हैं ना? अरे आप फर्ज कीजिए कि आपके घर में कुछ ना भी हो, लेकिन अगर मालूम हो कि मेरा महबूब आ रहा है, तो आप तो पहले सीना चीरने की बात करेंगे, निगाहें पलकें बिछाने की बात करेंगे, आप है कि नहीं? आप कहीं एतराज नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे अब क्या होगा, कैसा होगा, महबूब आ रहा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अरे आ रहा है, एकदम हम पलकें बिछाएंगे, जो होगा वो पेश कर देंगे। महबूब का कॉन्सेप्ट ये होता। तो 1500 साल का जो कॉन्सेप्ट है ये निस्बत इलन नबी है, ये मेरे आका की तरफ निस्बत है। और अगर आप मोहब्बत करते हैं नबी से तो डिस्कस ना कीजिए, बल्कि कम से कम कहूंगा कि 15 लाख तो दरूद जरूर पढ़िए, क्योंकि ये पहचान है इश्क की, ये पहचान है मोहब्बत की। और मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है और इश्क का ताल्लुक रूह से है। इसीलिए एक जुमला कहूं, जो कुरान आया है ना, इसको कैच कर लीजिएगा, बात इश्क की है, कैच कीजिए। कुरान को देखेंगे तो अल्फाज नजर आएंगे, पढ़ेंगे तो इल्म नजर आएगा। देखेंगे तो अल्फाज, पढ़ेंगे तो इल्म, देखेंगे तो अल्फाज, पढ़ेंगे इल्म, समझेंगे तो सुभान। देखिए आप, पढ़ेंगे तो इल्म, मानेंगे, देखिएगा, मानेंगे तो रसूल, मानेंगे तो रसूल, अमल करेंगे तो खुदा नजर आए। अमल करेंगे, इसको साइलेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। तो कुरान पाक जो लाया गया है ना, नजर देखिए, आयशा सिद्दीका की नजर देखिए, काना खुलुकुल कुरान, हुजूर के ऑल इन ऑल लाइफ जो है वो क्या है? कुरान है। आपके जो कैरेक्टर है वो कुरान है। अच्छा आप ये बताइए, अगर कैरेक्टर नबी का कुरान है तो तब्बत यदा अबी लहब क्या कर रहा है? जी सुभान अल्लाह, जा सकता है माइंड वहां पर भी। आप जरा समझिए, इसमें कौन से किरदार नबी हैं? अब नहीं ही नहीं बोलिए, इसमें कौन सा किरदार नबी है? क्योंकि जब कहा है आयशा ने और साहबा के पूछने पर कहा है, तो ये कौल इजमाई कौल हो गया। साहबा का अकीदा है कि पूरा कुरान नबी का किरदार है, नबी का किरदार, और इसको मानना है, इसको बिलीव करना है, अब तलाशना है। ये नहीं बोल सकते नहीं है, नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं इस आयत में भी, तब्बत यदा अबी लहब में आप तलाशना चाहते हो किरदार नबी, तलाशना चाहते हो, फारान की चोटी पे आ जाओ, लोग जमा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, एक अल्लाह को मानो, सुनो, पीछे की तरफ ये है
پہاڑ ہے، میں کہوں کہ پہاڑ کی طرف سے عذاب آ رہا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو اعلان جس کو کہتے ہیں فاران کی چوٹی سے اعلان ہوا، اس وقت ایک جملہ کہا ابو لہب نے، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا. ذرا محفل رسول کی عظمت کو بھی سمجھیے گا اس سے، کہ تیرے لیے بربادی ہو اے محمد، تو نے ہم سب کو اکٹھا اسی لیے کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ محفل رسول میں ذکر خدا ہونا یا ذکر خیر ہونا، اللہ رسول کا ذکر ہونا، قبول کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، فاروق کہتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے کو ابو لہب کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا تبا لک یا محمد، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے. اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو کیا دکھا کہ نہیں مصطفیٰ کا کردار ہے؟ اسے کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، نظر چاہیے. اور کس کی نظر؟ محبت کی نظر. تو رسول بھی دکھیں گے، خدا بھی دکھیں گے. محبت کی نظر، عشق کی نظر چاہیے، پازیٹیوٹی کی نظر چاہیے. بہرحال یہ 1500 سال کا جو لفظ ہے یہ نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عاشق اور محب رسول اعتراض نہیں کرے گا، وہ اہتمام کرے گا. اس لفظ پہ غور کریں، وہ اعتراض نہیں کرے گا، اہتمام کرے گا. محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا. مفتی صاحب سے میں دوسرا سوال کیا تھا، جو 1500 سال یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا سارے عالم میں، اور اس پر مفتی صاحب کے انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو جملے تھے وہ جملہ بہت دل کو چھو گیا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور عشق کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اگر فتویٰ لگانا ہے تو روح پہ لگاؤ. اور فرمائے ماشاءاللہ، اور قرآن کی دلیل بھی دی ہے مفتی صاحب نے، اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کی اتباع کرو. سبحان اللہ، آل عمران 31، سبحان اللہ. اور مفتی صاحب بہت ہی جو ہے نا کھلے انداز سے سمجھائے ہیں، اور اس کا علمی جواب دیے ہیں، قرآنی جواب دیے ہیں. اس کو ضرور سماعت فرمائیں. اور میں آج تیسرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آج جبکہ خانگی اور شہری ملکی سطح پر، جیسا کہ میں بولوں نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر، آج مسلمان پریشان ہے. جیسا کہ نیشنل لیول پر موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر مسلمان پر بے شمار ظلم حملے ہو رہے ہیں. اور دیکھا جاتا سوشل میڈیا پہ کتنے سارے تصاویر آتے ہیں، معصوم بچے، ہر چیز میں جی بچے ہیں، اور سارے عالم میں ستایا جا رہا ہے. اور اس موقع پر بھی ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منائیں گے تو اس کا کیا شرعی جواب ہوگا، کیا جواز ہوگا؟ آپ عنایت فرمائیں. اگر اس کا ایک لفظ میں جواب سنیں تو ان تمام کے سد باب کا حل ہی ہے حضور کا ذکر. سبحان اللہ. تو حدیث کے لفظ سنیے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. سبحان اللہ. مسلمانوں ظلم سے بچنا چاہتے ہو، رحم چاہتے ہو، پازیٹیوٹی چاہتے ہو، عیش چاہتے ہو، ظاہر ہے جس پر خدا کا رحم ہوگا وہ تنگی سے بھی نجات پائے گا، ظلم سے پر نجات پائے گا. صالحین کے ذکر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. میرے آقا تو صالحین کی بات کر رہے ہو، یہ تو کامن ہو گیا. صالحین سے اوپر ہے شہداء، اس کے اوپر ہے صدیق، اس کے اوپر ہے نبی، اس کے اوپر ہے رسول، اس کے اوپر ہے اولو العزم رسول. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں دیکھیں آپ. اور اس عظمت والے ذات کی انتہا کا نام خلق کے اعتبار سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ذکر کریں گے تو کیا صرف رحمت ہی نازل ہو گئے؟ تو پھر تو کامن ہو گیا نا کہ غوث کا بھی ذکر کیے تو رحمت نازل ہوئی، اور غوث کے نانا کا ذکر کیے تب بھی رحمت. معلوم ہوا کہ نبی کے ذکر سے اور میلاد النبی کے ذکر سے بالخصوص محفل مصطفیٰ سے ہی ہماری نجات کا حل ہے. اب اس کو عقیدت کے آئینے میں نہ دیکھیے. میں نے حدیث کے الفاظ میں کہا کہ اگر آپ، اسی لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ، بتائیے تنگی ہے کہ نہیں؟
बारिश नहीं हो रही है रसूल अल्लाह, तंगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की वजह क्या है? देखिएगा, तौहीद का दामन तो दे दिया है, तौहीद का जाम तो पिला दिया है, मस्जिद में जाना चाहिए ना और कहना चाहिए अल्लाह बारिश नहीं हो रही, लेकिन हुजूर के पास क्यों आए? तो देखिए, नबी की याद हर मुश्किल का हल है। सुभान अल्लाह। बारिश नहीं हो रही, ये तंगी है, तंगी है। आपने खानगी हर तरह से दुनिया, आज पूरी दुनिया इस तबाही के दाहने पर है। सोचिए ना, 2014 से पहले मतलब 70 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल है। सोना जो है 20,000, 30,000, 40,000 के अंदर था, आज 1 लाख रुपए बराबर। तो ये तो सब हो गए ना इससे मुतासिर, सब मुतासिर हो गए। तो जुल्म चाहे माश की शक्ल में हो, जुल्म चाहे तंगी वक्त की शक्ल में, जिस तरह से भी हर तरह से परेशान है, हर परेशानी का हल जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आपको नहीं मालूम वो रिवायत कि हैजा आ गया था एक मुल्क में, एक शहर में, वो जो वोमिटिंग की जो बीमारी होती, हर तरह से दस्त होना, पेट चलना वगैरह, एकदम हालात, क्लाइमेट खराब हो गए थे। अब सब मर रहे थे, रोज मर रहे थे। अल्लाह के किसी बंदे ने क्या कहा था कि सीरत की महफिल सजाओ। महफिल सजाया और उस महफिल से सब मसला हल हो गया। अरे दाफिउल बला वल वबा कौन है? मैंने इसीलिए कहा सालेहीन के जिक्र से रहमत नाजिल होती है, सबसे आला नबी के जिक्र से क्या होगा? रहमत भी नाजिल होगी, रहमत का फुकदान भी होगा, नजात भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इस नबी की वजह से जब सबसे बड़ी नेमत मगफिरत है वो मिल सकती है, तो ये दुनिया की मुश्किलात क्या है जो आप भी हल कर सकते हो, उसको दूर करने के लिए नबी का जिक्र बिल्कुल काफी है। इसलिए जो खानगी हो यानी घरेलू सतह हो या शहरी सतह हो या मुल्की सतह हो, मैं मुल्की सतह की बात या आलमी सतह की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात अगर सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचे तो एक बात तमाम को कहूंगा कि आप घर में भी महफिले सीरत नबी रखिए, ये ना हो सके तो दुरूद का दस्तर जरूर बिछवाइए। पूरे महीने न सही, आपको तकलीफ को तो दूर करना है ना भाई। डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा भी देना चाहते हैं, आप देते भी हैं, फिर शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम एकदम मुफ्त में, आप सिर्फ गुस्ल कीजिए, नहाइए, बावजू होइए, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे घर के अफराद को बिठाइए और दुरूद शरीफ पढ़िए। आप, मैं गारंटी नहीं, खुदा गारंटी दे रहा है, एक बार पढ़ोगे तो 10 रहमत नाजिल करूंगा, खुदा दे रहा है। अब मोमिन है तो आपको तो खुदा की माननी होगी ना, रसूल पाक की माननी होगी ना। खुदा ने अपने रसूल के जरिए कहा ना, 10 रहमतें अल्लाह नाजिल फरमाता, मगफिरतें नाजिल फरमाता, गुनाहों को दूर करता है। ये इतना गारंटेड अमल है। इसलिए आज खानगी, शहरी, मुल्की, आलमी सतह का अगर जो जवाली उन्वान बना हुआ है, इन तमाम के खात्मा के लिए बहुत जरूरी है महफिल दुरूद शरीफ, महफिल जिक्र नबी, महफिल सीरत नबी। मोहतरम सामईन, आपने समाअत फरमाया, जबकि खानगी हो या मुल्की हो या शहरी हो, आलमी सतह पर, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जब मुसलमान परेशान होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र की महफिल सजाना चाहिए, हुजूर पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना चाहिए। इससे ही अल्लाह ताला बंदों पर करम फरमाता और रहम फरमाता है। और मुफ्ती साहब ने एक दलील पेश की है, जब सालेहीन का जिक्र करते हैं तो रहमत नाजिल होती है। जो औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं, सालेहीन का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो जब सैयदुल अंबिया का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला की क्या नेमतें और क्या क्या इनामात से सरफराज होगा बंदा। और सोचना चाहिए, जो कोई परेशान है, फाइनेंशियली हो या मर्ज का हो या कौन सा भी हो, दिली हो, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, रूहानी हो या जिस्मानी हो, हर एक के लिए रहमत और शिफा अल्लाह ताला का इनाम होगा जो हुजूर की महफिल सजाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज में प्यारा जवाब दिए हैं। और इस जवाब को सुनकर अमल, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामाइन, आप जरूर इस पॉडकास्ट से महजूज हो रहे होंगे इंशाल्लाह जब सुनेंगे। और इंशाल्लाह मेरा आज चौथा सवाल मुफ्ती साहब से ये है। जनरली ये सवाल होता है मुफ्ती साहब कि जब
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोग दिल खोलकर एहतमाम करते हैं, लाइटिंग का, खाने का एहतमाम करते हैं, लोगों को जो है ना कुछ तोहफे तवाइफ का एहतमाम करते हैं, उलमा की बारगाह में कुछ तोहफे तवाइफ जो एहतमाम करते हैं, जो प्राइजेस देते हैं, कुछ भी जो भी है, तो वो एहतमाम होते हैं, नजराने का एहतमाम होता है बड़े लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इसमें थोड़े लोग ये उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि इतना खर्चा क्यों, अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी हो जाती इसके अंदर, क्यों इतना खर्चा करते हो? तो इस पर क्या आप जवाब देंगे? मैं अफसोस कर सकता हूं इस सवाल पे, अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो अफसोस कर, क्योंकि इस सवाल से पहले का जो जवाब और सवाल था वो मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिक ये सवाल का जवाब खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं उन तमाम हजरात से बड़े ही तौहीदी अदब और एहतराम के आईने में गुजारिश करूंगा कि आप उन तमाम की फहरिस्तें लाओ जी, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है या गुर्बत की वजह से जी, उनकी शादी नहीं हो रही है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मिलादुन नबी ही क्यों नजर आया गरीब लड़की की शादी के हवाले से? पूरे 11 महीने क्या कर रहे थे आप? मिलादुन नबी ही में आपको गरीब लड़की नजर आई। 11 महीने शादी का महीना नहीं है, सिर्फ मिलादुन नबी का महीना गरीबी का महीना है। ये बुग़्ज़ बता रहा है, ये इनाद बता रहा है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से ये सरकशी और बगावत बता रही है। इसलिए अगर अपने लोग ऐसा करते हैं तो ये मिसलीड हुए हैं वो या मिसयूज हुए हैं वो। इसलिए वो तो एकदम कंफ्यूज को दूर कर दें कि आपकी हर तकलीफ, बल्कि आज बड़ी मोहब्बत से कहूंगा कि वो बहनें या वो बेटियां या वो माएं जो अपनी बेटियों की शादी की वजह से, या वो बहनें जो माँ बाप की गुर्बत की वजह से अपने आप में कमतरी के शिकार हैं, खुदा की कसम तुम दरूद पढ़ो, रहमत नाजिल होगी घर में, बरकत नाजिल होगी घर में। और बरकत का मतलब पैसा ही नहीं है, हर वो चीज है जो तुम चाहोगी। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 या 1 में आप देखेंगे, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि तुम अमल करके तो देखो। तकवा का बमाना अमल है, वहां तुम अल्लाह की बारगाह में अमल करके तो देखो। तकवा की सबसे आला मेयार है जिक्र रसूल, क्योंकि नमाज नबी के बाद है, हज नबी के बाद है, पिलर्स ऑफ इस्लाम सब नबी के बाद है, पहले नबी हैं, तो जिक्र रसूल मुकद्दम है। तो उस आयत के तनाजुर में भी आपको बताऊं कि यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर जिक्र रसूल करोगी तो इस जगह से तुम्हें अल्लाह रिस्क देगा कि गुमान भी नहीं कर पाओगी। इसलिए हमारी बहनें, हमारी वो बेटियां जो शादी वगैरह की वजह से अपने माँ बाप को लान तान करती है कि हम गरीब घर में पैदा हो गए, कैसा होगा। नहीं नहीं, तुम फख्र करो, माँ बाप का साया है, और दुआ करो कि माँ बाप पर रहमत नाजिल हो जाए। तुम बेटियां हो, तुम शिकवा कैसे कर सकती है? तुम गैरों के साथ भागने की प्लानिंग कैसे कर सकती हो? इसलिए लोगों, अगर जो लोग एतराज करते हैं कि गरीब की शादियां कराना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उनकी फहरिस्तें लाओ, उनके एंगेजमेंट का मसला लाओ। ये हवाई फायरिंग मत करो और नबी से दूर करने की साजिश मत करो। 11 महीने तक भी तुम्हारे सामने मौजूद है, तो तुम आम महीने में भी तो ये पेश कर सकते हो ना कि गरीबी यहां है। तुम रबीउल अव्वल ही में क्यों लाते हो गरीब लड़की? और तुम्हें किसने कहा है कि रबीउल अव्वल में मदद करने वाले मदद नहीं करते हैं? एक एक कदम पर, नबी के एक एक कदम पर ऊंटों की कुर्बानी देने वाले उस्मान गनी से कभी सवाल किया तुमने कि कौन सी बिदअत है? लब हिलाया था मुस्तफा ने और सारा असासा दे दिया सिद्दीक़ अकबर ने। तो नबी के लिए जो माली या बदनी तसव्वुर किए जाते हैं ना, वो दुनिया में क्या खुदा की नजर में सबसे अफजल इबादत है, सबसे अफजल इबादत। फॉर एग्जाम्पल, अली ने असर की नमाज नबी के लिए कज़ा की थी, और ये कज़ा इतनी अजीम बन गई कि सूरज निकल गया उनकी खातिर, निजाम कुदरत बदल दिया अल्लाह। या हबीब से रिलेटेड उन्वान पॉजिटिविटी के साथ करोगे ना, तो याद रखना कि सबसे आला और अफजल तसव्वुर मिलेगा अल्लाह की तरफ से। इसलिए जो लोग एतराज करते हैं कि गरीब लड़की की शादी कराने इतना क्यों खर्च करें, ये कंपैरिजन ही बातिल है। ये कह सकते हो आप कि गरीबों को भी देखा जाए, क्योंकि मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा, मेरे आका की शान है मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा।
تو जिस मुहिब्बुल फुकरा और गुरबा की मिलाद और उनका जिक्र करेंगे, हम गरीबों को नहीं। इसलिए नबी के नाम पर हम खुद खाते हैं, तुम खुद कह रहे हो खर्च करते, कहां खर्च करते हैं? नबी के नाम पर। नबी के नाम पर खर्च कहां खर्च करते हैं? लोगों ही में तो खर्च करते हैं, फेंकते तो नहीं है ना। तो माली जो इबादत है नबी के नाम पर ही कर। हाँ, इतना, ये इतना जितना नहीं, ये जिस्म, ये जान, ये वजूद, ये तमाम, ये फिदा का उम्मी व अबी, माँ बाप, सारी दुनिया भी कुर्बान कर दो ना, तो मुस्तफा के एक एहसान का बदला नहीं अदा होगा। तुम क्वांटिटी पेश करते हो, पूरा वजूद जो क्वालिटी है तुम्हारी जिंदगी का वो भी पेश कर दो तो हक अदा नहीं होगा। आप समझ रहे? इसलिए एतराज न करें और कंपैरिजन तो करें ही नहीं, गरीबों की आप भी मदद कीजिए। आप सवाल क्यों करते हैं? बल्कि गरीबों की मदद नबी के नाम पर कीजिए ना, डबल सवाब मिलेगा आपको। जिन लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं ना, आप मांग मांग कर तो देखिए, हम सीना देने को तैयार हैं यार कि मिलादुन नबी करने वालों, ये गरीब लड़की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहक है, आप जो है नबी के नाम पर दोगे, देखो हम देते हैं कि नहीं। देखिए ये सोशलाइज ना करो, आप उम्मत को कंफ्यूज ना करो। ये नबी से दूर होने के जुमले हैं, दूर करने के जुमले हैं, और इनसे हम सबको चाहिए कि बचें। और जो लोग ऐसा सवाल करते हैं वो अपनी थिंकिंग और थॉट से फैसला न करें, बल्कि इश्क और दिल से फैसला करें, रूह से फैसला करें कि आका आपके लिए जब जान भी कुर्बान है, तो ये माल क्या है, आप ला करके दो। हम भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं ना, ला करके दो, बता तो हम बड़ों के हवाले करेंगे आपको, हम सरमदानी वक्त के हवाले करेंगे। एक जुमला कहेंगे कि ये गरीब है, इनका वेरिफिकेशन कीजिए और मदद कीजिए नबी के नाम पे। इसलिए सवाल नहीं, बल्कि इश्क की पहचान है जिक्र रसूल। मोहतरम सामाइन और नाजरीन, आपने समाज फरमाया जो नबी के नाम पे खर्चा किया जाता है वो जितना भी करे कम है। हमारी जान भी कुर्बान है नबी के नाम पर, हमारा माल भी कुर्बान है नबी के नाम पर। सुभान अल्लाह, फिदा का उम्मी अभी या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने समाज फरमाया हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लब हलाए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सारा माल नबी की बारगाह में पेश कर दिया, नबी पे कुर्बान कर दिया। जब नबी लब हलाए तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अपना सारा माल नबी की बारगाह में पेश कर दिए हैं। ये जो है ना उन्वानात है, आज इश्क का उन्वान है माशाअल्लाह। वह जरूर ब जरूर इसको समाज फरमाए, अमल करने की कोशिश करें। और जो लोग एतराजात करते हैं किसी गरीब बच्ची की शादी, इसको सुनिए और अमल करिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो लुटाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में वो अजीज हो जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है उससे। और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से है। मुफ्ती साहब ये बताए कि लोग तो कहते हैं, सुनने में आता, इस्लाम में दो ही ईद हैं, दो ही ईद है, एक ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा है, ईद उल फित्र है, और ये तीसरी ईद का उन्वान कहां से लाए आप, कैसा लाए? और ये सोशल मीडिया पर भी जो है ना पेश किया जाता है और प्रिंट मीडिया पे भी जो है ना दिखा जाता है कि जो तीसरी ईद कहां से लाए। इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए और शरई इसकी हकीकत क्या है बताएं। अच्छी तलाश और ततब्बो है आपकी। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। कि हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा जो हमारे लिए, हमारे अव्वल के लिए भी और हमारे आखिर के लिए भी, यानी हमारे लिए भी उन्होंने कहा। क्या हो? ईदन का लफ्ज है। अब लफ्ज ईद का जो भी आप माना लें, यहाँ वो ईद उल फित्र नहीं है, वो ईद उल अज़हा नहीं है, वो तीसरी चीज है। समझ रहे ना? अब अगर कुरान की इस ईद को तस्लीम कर सकते हो तो साहिब कुरान वाली ईद को तस्लीम करने में एतराज क्या है? इतना तो तय हो गया कि तीसरी ईद का कॉन्सेप्ट जो है एतराज की दुनिया में ये बिदअत है। एतराज की दुनिया में जो एतराज करते हैं कि ईद तो दो ही है, तो फिर ये कौन सी ईद है? सूरह मायदा की जो लास्ट पेज की जो आयत करीमा है, फर्स्ट ही में एकदम आयत, मैंने आयत पढ़ दिया है
समझ रहे आप? ये कौन सी ईद है? ईद उल फित्र तो नहीं। तो कुरान ने जब कह दिया कि ईद दो ही है, ऐसा नहीं, तीसरी भी ईद कुरान ने जिक्र किया। समझ रहे हैं? अब सवाल ये हुआ, भाई कहूंगा कि ये बोग्स है, ये इनाद है। ईद मिलादुन नबी, ईद का मतलब क्या होता है? अगर लफ्जी एतबार से इसको देखें तो वो चीज जो बार बार आए, आओ ऐन वाओ दाल, जैसे इयादत इसी से है, किसी के यहां जाना फिर आना, लौट करके। तो ईद बार बार आने वाली, इसीलिए ईद उल फित्र हर साल आती है, ईद उल अजहा हर साल आती है। लेकिन उमूमी तौर पर जो ईद का माना बताया जाता है वो खुशी है, तो नबी की विलादत की खुशी। क्या रबीउल अव्वल एक ही मर्तबा आता है? पलट पलट के आता। पहले सवाल के बाद जो दूसरे सवाल, बल्कि हर सवाल में वो जवाब मौजूद है। पहले तो ये कि दो ईद का सवाल ही बिदात है, समझ रहे ना आप? और दूसरा जवाब ये आसान ये है कि मिलादुन नबी से अगर खुशी नहीं है तो फिर आप जो है तौहीद वाली कैटेगरी से निकल जाओ, क्योंकि मेरी किताब आने वाली है जश्न आमद मोहसिन इंसानियत, जो खुदा करे आपकी वालिद गिरामी का जरिए नजात बन जाए। तो मैं यही कहूंगा कि उसमें मैंने हाकिम मुस्तदरक के हवाले से और दिगर हदीस के हवाले से बताया है कि चार मौकों पर इब्लीस बहुत ज्यादा रोया है। रन्नात का लफ्ज है, बहुत ज्यादा रोया है। रन बोलते हैं चीख पुकार के साथ, जैसे बच्चे रोते हैं ना दूध के लिए, कितना भी उसको कहो। अब माँ अगर बाहर हो और आप बच्चे को लीजिए और रोना शुरू कर दे, तो सोचिए वो जब तक जिस चीज के लिए रो रहा है वो चीज ना मिल जाए, वो रोता रहेगा कि नहीं? चीख पुकार, खूब जोर जोर से रोना, उसको रन बोलते हैं। रन्ना अरबी लफ्ज है। इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्नात, चार मकामात पर इब्लीस रोया है। ठीक है, पहला ओह बेटा, बल्कि तो लोएना, जब उस पर अल्लाह ने लानत की। अच्छा, लानत क्यों की थी? सारे फरिश्ते सजदा किए, ये बदबख्त सजदा नहीं किया, तो अल्लाह की लानत हुई। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा जो आसमान से उतार दिया गया जमीन पर, पहले ऊपर रहता था फरिश्तों के साथ, तो दूसरी मर्तबा ये, इसमें भी बहुत रोया कि हमको उतार दिया गया। और तीसरी है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हुई, पैदाइश हुई ना, बोले ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और चौथी है कि जब सूरह फातिहा का नज़ूल हुआ, अरबी के लफ्ज में फातिहा नाजिल हुआ। मैं इस पर अलग से बहस करूंगा, लेकिन मिलादुन नबी में कौन रोया? शैतान ने बोली आप? शैतान तो आज भी है। शैतान की जड़ इब्लीस रोया है। दूसरी रिवायत में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसी रोने की वजह से ऐसी नूरानी लात मारी कि कहां जाकर, मकाम आदल में जाकर गिरा था। मैं इस पर अकीदत का जामा नहीं पहनाना चाहता हूं, बल्कि अकीदा देना चाहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद कहा जाए। ईद उल फित्र से भी ये अफजल, ईद उल अजहा से भी अफजल, क्योंकि ईद उल फित्र जो है ये खेल कूद या सेवैयों का नाम नहीं है, नमाज का नाम है। और नमाज किसने दिया आपको? जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे ना, तो यहूदियां इसी 2 दिन में क्या मनाते थे? एंजॉय करते थे, खेल कूद करते थे ये 2 दिन में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर इन 2 दिन में तुम्हें एंजॉय का भी उन्वान दे दूं और अल्लाह के कुर्ब का भी जरिया दे दूं बदल करके, तुम लोग खुश हो गए? कहा जी, कहा जाओ इन दोनों दिनों में एक दिन ईद उल फित्र मनाओ, एक दिन ईद उल अजहा मनाओ, खाने पीने का दिन, खुशियों का दिन। देखिए किसने दिया ये? वाह वाह वाह। उस देने वाले नबी को आप रिजेक्ट कर रहे हो, और वो जो दिए हैं उन दोनों ईद की वजह से। ये तो ऐसे ही हुआ कि हमने आपको तोहफा दिया, तो तोहफा देखकर खुश हो रहे हो और तोहफा वाले को कह रहे हो जाइए, उनको रिजेक्ट कर रहे हो। तोहफा की अजमत तोहफा वाले से होती है। जितना अहम तोहफा देने वाला होता है ना, उतने ही अहम
तोहफा होता है। अगर आपको बेटा तोहफा दे तो उसके हिसाब से अहमियत होगी, बाप तोहफा दे उसके हिसाब से, उस्ताद दे उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पोस्टेड आदमी वजीर आजम दे आपको, सदर जमहूरिया दे आपको, आज का वजीर आजम की बात नहीं कर रहा हूं, पोस्टेड आदमी की बात कर रहा हूं, तो जो तोहफे की फिर वो हैसियत बढ़ जाती है। तो तोहफे वाले से मतलब हैसियत बढ़ती तोहफे की। ईद उल फित्र किसने दिया? नबी ने दिया। ईद उल अजहा किसने दिया? नबी ने दिया। वाह, इन दोनों ईद की वजह से आप क्या कर रहे हैं? ये तीसरी ईद कहां से आई? मैं कहता हूं ये पहली ईद है जो इन दोनों ईद को ईद बनाया। ये तीसरी नहीं, ये पहली ईद है। ईदों की ईद है नहीं, ये पहली ईद है, और दूसरी तीसरी तो ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। पहली ईद है ईद मिलादुन नबी। और अगर इसको नहीं मानोगे तो तसव्वुर ईद उल फित्र भी खत्म, तसव्वुर ईद उल अजहा भी खत्म। समझ रहे हैं आप? जी मोहतरम सामने नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती साहब से जो सवाल किया गया था दो ईद के मुताल्लिक, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, और उसमें मुफ्ती साहब ने कुरान की दलील पेश की है, सूरह माइदा की आयत तिलावत की है। बताया गया है जब दस्तरखान नाजिल हुआ तो ये अगले और पिछले के लिए ईद बन जाए। ये तीसरी ईद कुरान ने दी है, तो हमें जो ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मिली है यही मिलादुन नबी का सदका है, जो ईद उल फित्र भी मिली है और ईद उल अजहा भी मिली है। बिदअत का जुमला कहना, तीसरी ईद कहां से? खुद कहना बिदअत, ये खुद कहना बिदअत है। सुभान अल्लाह। तो इस पॉडकास्ट का जो मतलब क्या है, ये हमारा नाज़रीन, ये हमारा 15th पॉडकास्ट आपकी बज़्म खिदमत में पेश किया गया है, और इसको समाअत फरमाएं। और ये स्पेशल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉडकास्ट है, और इसी का तसलसल जारी और सारी रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और जो है ना, ये भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपका होस्ट, आप जो है अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है जी पॉजिटिविटी के साथ, एतराज के साथ नहीं, तो एतराज करने के लिए फिर आपको मुताला करना जी जी। एक हदीस की किताब का नाम 60,563 हदीस है। सुभान अल्लाह। अगर आप कहेंगे कहाँ है तो फिर मैं आपको कहूंगा कि 60,563 हदीसें पहले पढ़ लीजिए, बेशक। तब बोल सकते हैं कहाँ है। तो आप जरा समझ लेवल भी समझ करके एतराज कीजिए। देखिए, आप ये पॉडकास्ट का मतलब तमाम जो जवाबात जो चल रहे हैं जिनके दिमागों में और सोशल मीडिया के तौर पर लोगों को जो है ना मैनिपुलेट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, बताया जा रहा है ये मिलादुन नबी कैसा क्या है, इसके तमाम जवाबात हमने आपके सामने एक सीरीज के साथ पेश कर रहे हैं, ताकि आपको अगर कोई नेगेटिव पहलू आ रहा है तो हमसे राब्ता पैदा कर सकते हैं, और आपको कुरान की रोशनी में जवाब दिया जाएगा और शरीयत की रोशनी में जवाब दिया जाएगा, और पूरा दलील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया जा रहा है। और इस पॉडकास्ट का मतलब ये है कि जरूर इसको समाअत फरमाएं और सुनकर जो है ना अपनी इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल का एहतमाम करें, और दुरूद की महफिल अपने घरों में सजाएं, अपने तमाम अफराद के साथ दुरूद शरीफ का नजराना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे। ये 1500 ईयर्स, 1500 साल जो है ना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मौके पर जितना कसरत से हो सके सरकार की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करे और अपनी अकीदतों का नजराना पेश करे, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत और अटूट हो जाए, ताकि हमें अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की खास नेमतें और रहमतों के हम हकदार बने दीन और दुनिया में। और दुरूद का ये है कि क़यामत के दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का ये उन्वान देता है, और कुर्बत नसीब होती है जितना हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। और इसी के साथ मैं माइक मुफ्ती साहब के हवाले कर रहा हूं, और दुआ के बाद ये पॉडकास्ट इख्तिताम होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। दो बात मैं भी कहूंगा फिर दुआ करूंगा कि नमाज का भी एहतमाम करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये हमने आपको कहा कि महफिल सजाएं, नमाज का भी एहतमाम करें। गर्जे के जो फराइज और वाजिबात हैं उनको मुकद्दम रखें, मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। एतराज न करें, सबसे बड़ी बात यह है कि एतराज न करें। सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने क्यों कबूल फरमाया? क्योंकि वो एतराज नहीं करते थे। सबसे मेन चीज ये, एतराज नहीं करते। क्यों नहीं था उनके पास? यस था उनके पास, यस था उनके पास। नबी ने कह दिया बस, कुरान में है बस,
एतराज न करें। आपको एक मिसाल दिया मैंने कि बुखारी में 7563 हदीस हैं मौजूदा सऊदी अरब के नुस्खे के मुताबिक। अब अगर आप कहते हैं कि मतलब ये कहाँ से वो कहाँ से, तो हम सवाल कर सकते हैं कि भाई 7563 हदीसें आपके मुताला में हैं। अब अगर आप कहेंगे नहीं, तो फिर सवाल कैसे कर दिया आपने? ये तो ऐसे ही हुआ कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा ही नहीं और आप कह रहे हैं कि फातिहा है ही नहीं। आपको नहीं कहने का हक उस वक्त है जब आप हाँ को पढ़ लें। हम एक किताब का सिर्फ अभी आपको बताए हैं कि बुखारी में 7563 हदीस है। अभी 5 जो सहीह सित्ता की 5 अलग किताब, मुस्लिम, तिरमिजी, तो अब नहीं बताए। सिर्फ बुखारी का आप मुताला कर लीजिए जो 7563 हदीस है, आपको मालूम हो जाए कि उसमें क्या क्या है। लेकिन आपको तो सिर्फ रफ़े यदैन को बताना है, क़िराअत खल्फिल इमाम बताना है, सीने पर हाथ रखना बताना, ये बताना है। मुहद्दिसीन मसला नहीं बताते, मुहद्दिसीन हदीस बताते, मसला फुक़हा बताते। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तकलीद इमाम बुखारी नहीं, क्योंकि इमाम बुखारी खुद मुक़ल्लिद है। इमाम बुखारी वो हदीस के इमाम हैं, जो उनको हदीस मिली वो पेश कर देना उनकी जिम्मेदारी, मसाइल बताना उनकी जिम्मेदारी नहीं। इसलिए हर तरह की वो हदीस पेश करते हैं। फर्ज कीजिए एक हदीस है बुखारी शरीफ में, हजरत अबू कतादा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ लाए कि अपनी नवासी को कांधे पर रखे हुए थे। हजरत ज़ैनब जो आपकी बेटी है, अबुल आस से हजरत ज़ैनब जिनका उनकी बेटी का नाम उमामा है, हुजूर की नवासी है, वो अपने कांधे पर लेकर तशरीफ लाए। बुखारी की हदीस है, समझ रहे आप। और नमाज की हालत में कांधे ही पर रखे, उसी हालत में आपने नमाज रकात बांध ली। जब रुकू में गए तो आपने उतार दिया, फिर जब रुकू से उठे तो आपने ले लिया, फिर जब सजदे में गए तो आपने उतार दिया। ये नमाज हो रही है या नवासी के साथ खेल कूद हो रही है? आप एतराज कर सकते नहीं। तो इस हदीस से क्या मसला निकला बताइए तो आप। अगर मसला निकालना हो तो ये मसला निकलेगा कि हर शख्स को चाहिए कि अपनी नवासी को कांधे पर लेकर आएं और इस तरह से नमाज पढ़ें। मसला ये निकलेगा। अब बुखारी शरीफ में है, यही तो रट लगाते हैं ना, कहाँ है बुखारी में? बुखारी में नहीं है मिलादुन नबी वगैरह। तो बुखारी में जो है उस पर आप अमल करके बताओ। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस से साबित हुआ कि जो नवासी वाले हैं वही नमाज पढ़ सकते, अब जिनके पास नवासी नहीं है वो नमाज ना पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिस का काम जो होता है हदीस को नकल करना है। अब उस हदीस से मसला क्या निकलेगा ये मुज्तहिदीन बताएंगे। इमाम शाफी, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद, अहमद इब्न हम्बल ये बताएंगे। मालिकी, शाफी, हम्बली ये बताएंगे। फुक़हा मुज्तहिदीन बताएं। नहीं तो आप ही बता दीजिए जो एतराज कर रहे हैं कि इससे क्या मसला निकला। और हम कोई दूसरी किताब से नहीं बोले, सही बुखारी से बोले। कहना यह है कि एतराज न करो। बस एतराज करना हो तो पहले आप ज़ब्त इल्म करो, जो आप तमाम जो हदीसें हैं उसका मुताला करो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर किचन में कोई चीज मौजूद हो और आपको न मिले तो इनकार कर सकते आप? मौजूद हो नहीं कर सकते। आपको नहीं मिल रहा है लेकिन चीज तो है ना। यही बताने जा रहा हूं। अगर आपने पूरा अच्छे से किचन को खंगाल लिया होता तो ऑटोमेटिक मिल जाता। तो यही कहना चाहता हूं कि आप 6666 कुरान की आयतें, 7563 हदीसें बुखारी, इसी तरह मुस्लिम, इसी तरह तिरमिजी, सबको आप पहले मुताला कर लीजिए। आपको नहीं मिलेगा। हम एक ही हदीस आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। जामे तिरमिजी में बाब ही बांधा है इमाम तिरमिजी ने, क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद। मिलाद का लफ्ज ही बांधा है, उन्वान ही बांधा है। अब आप बताइए, इमाम तिरमिजी सिहाह सित्ता के वो अजीम इमाम हैं जो शागिर्द हैं इमाम सुलेमान इब्ने अशस यानी अबू दाऊद शरीफ जो है ना, अबू दाऊद शरीफ के जो राइटर और मुसन्निफ हैं वो उनके उस्ताद हैं इमाम तिरमिजी के। लेकिन उस्ताद खुद कहते हैं कि मुझे फख्र है अपने इस शागिर्द पर। और उसकी एक वजह बता दूं आपको, क्योंकि इमाम तिरमिजी की जो तिरमिजी शरीफ है, आप सिहाह सित्ता की किताब का जब मुताला करेंगे ना तो हदीस पढ़ने के बाद आप कहीं पर हदीस की क्वालिटी नहीं बयान की गई। जैसे हदीस बयान हो गया उसके बाद नहीं कहा गया ये हदीस ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, हसन है, सही है, समझ रहे हैं आप, मौजू है, मुस्तरिब वगैरह। लेकिन इमाम तिरमिजी सिहाह सित्ता की सबसे अजीम किताब है
امام तिरमिजी को ये शरफ हासिल है कि वो हदीस भी बयान करते हैं और हदीस बयान करने के बाद कहते हैं हाजल हदीस सहीहुन हाजल हदीस हसनुन, यानी हदीस भी बयान किया और हदीस की क्वालिटी भी बयान कर दिया कि ये किस दर्जे की हदीस है। कितना काबिल तरीन इमाम तिरमिजी है और इतना बड़ा काबिल इमाम जब अपनी किताब की हेडिंग और उन्वान मिलाद दे रहा हो और आप बिदअत का फतवा लगा रहे हैं, तो फिर स्याह सित्ता से तिरमिजी को निकाल दीजिए तो पंज स्याह सित्ता नहीं होगा, स्याह पंजा हो जाएगा, वो 5 ही सही की किताब हो जाएगी ना। इसलिए बस यही कहूंगा कि आपको नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए, कंप्लीट पहले एजुकेशन हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए कंप्लीट, फिर जाकर एतराज कीजिए। जो कते वाली दुनिया है ना, ये मत कीजिए आप। अगर आप वाकई इंटेलिजेंट हैं और वाकई समझदार हैं, अपने आप को समझते हैं, तो आप पहले पढ़िए, पूरा स्टडी कीजिए, और स्टडी करेंगे तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगी। चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी पॉडकास्ट को कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहार के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की औलाद को रहमतों से, बरकतों से, सादतों से नवाजे, हमारी असलों की बख्शिश फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, घर में सबको नमाजी बनाए, नेक बनाए, साहिब किरदार, साहिब अखलाक हसना बनाए। खुल्क अजीम पर फाइज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहार के सबको तुफ़ैल में हम सबको हर जाविये से सालिह बनाए, नेक बनाए। वालिदैन जिनके जिंदा हैं उनका साया औलाद पर दराज फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं मौला उनकी बख्शिश फरमाए। परवरदिगार आलम जिन भाइयों ने दुआओं की दरखास्तें की हैं मौला उनकी दरखास्तों को कबूल फरमा, और जो नहीं कर सके और सुनने के बाद उनके दिल में जो भी नेक और जायज़ तमन्ना आए, परवरदिगार उनके दिली नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दाफ़िउल बला वल वबा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहार के सबको तुफ़ैल में हर मुश्किलात को दूर फरमा और उन्हें चैन, सुकून और हर तरह की आसाइशें अता फरमा, ज़हनी, फ़िक्री, जिस्मानी तवानाई और ताकत नसीब फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।